नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, हमें हक़ का हक़ होना दिखा दे और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हमें बातिल का बातिल होना दिखा दे और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। And we will start with ayat number 33 and go all the way up to ayat number 42. I had read these ayats to you yesterday also, but we didn't get a time to do the tafsir. Certainly, Allah preferred Adam, Noah, and the family of Ibrahim over the entire universe. They were descendants of each other. Allah is the all-hearing, the all-knowing. When the wife of Imran said, "O my Lord, I avow to you what is in my belly to be free, so accept it from me. Verily, only you are the all-hearing, the all-knowing." When she delivered the child, she said, "My Lord, I have delivered a girl, and Allah knows best what she delivered. A male is not like a female. I will name her Maryam, and I seek your protection for her and for her offspring from the accursed devil Shaitan." Her Lord accepted her with full acceptance, granted her an exceptional upbringing, placed her in the custody of Zachariah. When Zachariah went into the sanctuary wherein she was, he found food by her. He said, "O Maryam, from where did you get this?" She replied, "It is from Allah, and Allah provides for whom He pleases without stint." Then Zachariah prayed to his Lord, saying, "My Lord, grant me pure children from yourself. Without doubt you are the hearer of all prayers." So the angels called to him while he stood praying in the niche, mihrab. "Allah gives you glad tidings of Yahya, who shall confirm the word from Allah and shall be a leader, chaste, and a prophet from the righteous." He said, "My Lord, how can I have a son when old age had already reached me and my wife is barren?" Allah replied, "In this way Allah does as He pleases." He said, "My Lord, appoint for me a sign." Allah said, "Your sign is that you shall be unable to talk to people for 3 days, except by indications. Remember your Lord abundantly and hymn His purity by day and night." So now, what is starting over here, you see the discussion is now turning towards, I told you in the beginning of Surah Al-Imran that the first few rakus, the ayats are towards the delegation that had come of Christians. So जब Christians से बात की जा रही है, so they are being, the reference of their own prophet is being brought to them. And their own prophet was Isa alayhi salam. So the story of Maryam is being mentioned, Maryam alayhi salam is being mentioned over here. ठीक है? And like I told you, ये okay, and also इस delegation के अंदर there were 14 priests and there were 60 people in total. There were priests, bishops. So now the common link is being established between the Christians and the Muslims, and the Quran is talking about, the ayats are talking about Maryam alayhi salam, Isa alayhi salam, and you see the first nabuwat. You see in the first ayat number 33, Allah saying, Allah preferred Adam alayhi salam is mentioned, Noah and the family of Ibrahim. Adam alayhi salam was the first prophet. He was also the first man made, and he was also the first prophet. Then Noah alayhi salam is called the second Adam, because Noah alayhi salam के टाइम पे पूरी दुनिया तबाह कर दी गई थी with the flood, right? So humanity that went forth only with the nasl of Noah alayhi salam. Okay? उसके अलावा दुनिया पे जितने भी इंसान थे, वो नूह alayhi salam के टाइम पे जब अजाब आया था, तो that flood encompassed the whole globe. Therefore, the people, humanity was only saved on the ark. The only people who survived were the people on the ark of Noah alayhi salam. And it is said in Surah Safat, ayat number 77, that all people are the progeny of Noah alayhi salam. That's why he's called the second Adam, because he's also our father. That's why he's called Adam Sani. And Noah alayhi salam के 3 बेटे थे, ठीक है, that were Ham, Sam and Yasif, that were on that ark. And from these 3 sons, humanity की सारी races निकलती हैं, जिसमें मुफस्सिरीन कहते हैं कि from the son Sam, इनसे Semitic races निकलती हैं.
So the Arabs, the Jews, all of the prophets, Ibrahim alayhi salam is also from the nasl of Sam. And from these prophets हमें एक नाम मिलता है इमरान. हम सूरह आले इमरान कर रहे हैं ना, तो इमरान जो नाम मिलता है वो दो जगह आता है मुफस्सरीन से. इमरान was the name of the father of Musa alayhi salam. Okay, and second opinion of the ulama is that Imran is the father of Maryam alayhi salam, and we are going to study these ayats because up ahead Maryam alayhi salam is being mentioned. So we're going to study these ayats taking the second opinion of the ulama that Imran was the father of Maryam alayhi salam. Now, what is being said over here is istifa. The Arabic word that is being used is that she was selected by Allah. She was chosen, she was purified. And prophets, we have to know, are unparalleled in their beauty, in their bodily beauty, in the beauty of their soul, their personality, their ethics. The prophets are basically the cream of society. And prophethood is something where Allah chooses the prophet. आप इबादतों के दर्जे हासिल करके खुद prophet नहीं बन सकते. Allah is the one who knows, who has the best potential from all of humanity, and those are the people who He chooses and makes prophets. So here in ayat number 35 comes the dua of the wife of Imran. If you read ayat number 35, when the wife of Imran said, "O my Lord, I avow to you what is in my belly to be free, so accept it from me. Verily, only you are the all-hearing, the all-knowing." Now, this dua is made by, it is said this is Imran's wife making the dua, right? So this is the nani of Isa alayhi salam, the mother of Maryam alayhi salam. And in the riwayat of Bani Israel, her name is mentioned as Hana bint Fakhuz. And the name of Imran is Imran bin Masan, who is the father of Maryam alayhi salam. At this time, when she is making this dua, Allah inko ajr de, the wife of Imran is making the dua. Imran has passed away. Imran has died. He is no longer on the dunya. Maryam alayha salam is in her belly. And she is pledging this child to the service of Allah. Rather than saying, अब ये बच्चा पैदा हो, फिर ये मेरा ख्याल रखे, फिर ये मुझे कमा के खिलाए, फिर ये मेरी दुनिया चलाए. Look at how pious this woman is, that without worrying about herself, she's saying while she's expecting that Allah, I will give this child in your service. Okay? And she's not keeping the child for herself, she's not keeping the child for दुनिया के काम. And when, अच्छा उस वक्त ये दुआ होती थी, कैसे करते थे, सर्विस में कैसे देते थे. देखें, उस वक्त टेम्पल ऑफ सोलोमन हैड बीन एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, when Imran alayhi salam, when Imran's wife is making this dua, then the Masjid Aqsa, Temple of Solomon, ये बन चुका था ना. ये मूसा अलैहि सलाम के बाद की, ये बनी इसराइल के बाद की ये प्रॉफिट्स थे ना. ये बनी इसराइल की नस्ल ही चल रही थी जिसमें मरियम अलैहि सलाम है, ईसा अलैहि सलाम है. दे आर फ्रॉम द नस्ल ऑफ बनी इसराइल. तो और पैगंबर भी आ चुके थे. इनफैक्ट Allah is saying what? She was raised, chosen, made pious and brought up by Zakaria alayhi salam. Zakaria alayhi salam is also a prophet of Bani Israel. अच्छा, अब उस वक्त ये क्या करते थे कि ये जब इंटेंशन करते थे, जो इन्होंने दुआ की है, शी इज एक्चुअली प्लेजिंग हर चाइल्ड टू द टेम्पल ऑफ सोलोमन. ये नज़र मानते थे कि अल्लाह मेरे यहाँ, जो यूजुअली नज़र बेटों की होती थी, ठीक है, कि मेरे यहाँ ये जो बच्चा पैदा होगा, अल्लाह मैं इसको तेरी खिदमत में टेम्पल ऑफ सोलोमन में भेज दूंगी. एंड देन ऑल देयर लाइव्स दे स्पेंड इन दैट टेम्पल. दे आर रेज्ड बाय द प्रीस्ट्स, द उलेमा, द आलिम्स ओवर देयर. और फिर वो किताब सीखते थे, तौरात सीखते थे, और फिर वो आगे दीन का काम करते थे. दिस वॉज हर प्लेज. अब दुआ इज अ वर्बलाइजेशन. आप ये सुने कि उनके वर्ड्स कितने खूबसूरत हैं. अपनी आवाज़, दिल के अंदर नियत नहीं की, दुआ जब किए तो वर्बलाइजेशन किया वॉइस के साथ. तो हमें भी चाहिए कि हम दुआओं को वर्बलाइज करें, स्पेशली अ लॉट इन रमज़ान. एंड नाउ इतनी खूबसूरत उनकी आयत नंबर 36 के अंदर मासूमियत आ रही है. व्हेन शी डिलीवर्ड द चाइल्ड शी सेड, माय लॉर्ड, आई डिलीवर्ड अ गर्ल. ओहो अल्लाह, ये तो बेटी हो गई. ऑल्दो अल्लाह नो, सुभान अल्लाह, लेकिन अपनी मासूमियत में दुआ के अंदर कह रही है कि अल्लाह अब मैं क्या करूं.
How am I going to fulfill this nazar? How am I going to give this child in Temple of Solomon? Because उस वक्त only boys were allowed to be given. ठीक है, तो औलाद बेटी हो या बेटा, it doesn't matter. ये बेटी सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने क्या मरियम अलैहिस्सलाम उनको बेटी दी जो कयामत के दिन लाखों बेटों के ऊपर भारी पड़ेंगी ना. क्या नेक औलाद दी, क्या माशाल्लाह. Maryam alayhi salam has been honored in the Quran. She was honored by Allah. ठीक है, and she said, then she gave Maryam alayhi salam in the Temple of Solomon. ठीक है, और क्या शान वाली ये बेटी थी. अच्छा, अब उनके यहाँ the name was given between the 1st and the 7th day. So she says that I've named her Maryam. Maryam का मतलब होता है आबिदा, खिदमत गुजार, one who is always going to be in service. किसकी सर्विस में थी? अल्लाह की सर्विस में. And when she gave this child, she said कि her nasl is in Allah's pana. मरियम अलैहिस्सलाम जो बच्ची पैदा हुई, her and her nasl पहले ही उनको अल्लाह की पनाह में दे दिया. And she wants them to be pure and religious. हदीस का मफहूम आता है कि when a child is born, शैतान touches the child and the child screams and cries. डिलीवरी रूम में होता है ना, बच्चा बहुत रोता है, वो कहते हैं साइंटिफिकली, वो कहते हैं कि जी he is filling his lungs with oxygen, that's why he screams and cries. हदीस में बता दिया नहीं, शैतान उसको टच करता है. That means डिलीवरी रूम के अंदर पेरेंट्स के साथ, डॉक्टर के साथ शैतान मौजूद होता है, वो खड़ा होता है और and he touches the child. ठीक है, but Hazur sallallahu alaihi wasallam said except for Maryam and her son, when these two were born, the shaitan was unable to touch them. Why? Because of this dua of Maryam's mother. कितनी वो नेक औरत होगी, अल्लाह उसको अजर दे कि एक तो she gave her child in service, then she prayed to Allah कि अल्लाह इसको और इसकी नस्ल को अपनी पनाह में रखना, इसको और इसकी औलाद को. And Allah Pak is saying that Allah chose her. Then Maryam alayhi salam का तस्किया किया गया. She was purified, खूबसूरत, उनकी natural, she was close to fitrat. ठीक है, एक तो she was born and sent into the service in the Temple of Solomon, and then subhanallah, she was brought up by Zakaria alayhi salam, who himself was a prophet. And she put Imran's wife, this Hannah bint Fakhuz, she put Maryam alayhi salam in front of the Haikal of Suleiman. And she's a girl being dedicated from a very high family. Now, they had the saying in their books. हैकल को टेम्पल कहते हैं, बट टेम्पल उस वक्त कहा जाता था, टेम्पल इज नॉट नाउजुबिल्लाह शिर्क की जगह, इट वाज अ मस्जिद. उनकी लैंग्वेज में उसको टेम्पल कहते थे, टेम्पल ऑफ सोलोमन. इसका मतलब ये नहीं है कि नाउजुबिल्लाह वहाँ पे शिर्क हो रहा था, वो मस्जिद थी, वहाँ पे अल्लाह की इबादत हो रही थी, तौरात पढ़ी जाती थी. अच्छा, when Maryam alayhi salam was brought to the temple of Solomon, इस चीज को आप समझ लें कि in their books they had the nishani of Maryam alayhi salam. They knew that this very pious girl is going to come into the service. So what happened was everybody started competing. वहाँ पे जितने आलिम थे वो कहते थे हमने करनी है इसकी परवरिश, we want to be the guardian, we want to be the guardian, rather than sending her away. I told you उनसे पहले no girl was allowed to come into the service, but for her everybody started fighting. एक तो उनको ये भी पता था कि she was from a high family, इमरान अलैहि सलाम की बेटी है ये, उनको पता था कि ये आलिम की बेटी है. ठीक है, so अच्छा, Zakaria अलैहि सलाम का again we refer to, the Muslim ulama are allowed to refer to Bani Israel's riwayat as far as they are taking out rishtedariyan. ठीक है, as far as it's not about the ahkam, but when they are taking out the history and the rishtedariyan and some of these things they take from the riwayat. तो बनी इसराइल की रिवायात के अंदर आता है Zakaria अलैहि सलाम was either a khalu to Maryam alayhi salam, or he was a behnoi. Either he was the sister's husband or he was the mother's sister's husband. ठीक है, अच्छा, अब ये इल्म और wisdom was given to Maryam alayhi salam and रिस्क दिया जा रहा था उनको. ये कहा जा रहा है ना इन आयतों के अंदर कि ज़करिया अलैहि सलाम came and they were fruits. अब होता क्या था कि अकेले कमरे के अंदर ये इबादत गुजार बनते थे, इबादत करते रहते थे day and night. They grew on their connection to Allah. इसीलिए हमें रमज़ान दिया गया, to grow on our connection to Allah. You see, this connection is within our ruh, it is available.
हम हमारी बॉडी इतनी बिजी है that we become busy in the dunya and the connection becomes weaker and weaker and weaker, and then Ramzan comes and Allah says बस अब दुनिया के कामों से फारिग हो जाओ, अब तुम आ जाओ वापस अपना कनेक्शन, वाईफाई कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ वापस कहाँ एस्टैब्लिश होगी इंशाल्लाह रमजान के अंदर। बिकॉज द रूह, सबसे पहले जब इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह पाक ने क्या कहा था, मैंने अपनी रूह में से फूका है। Nauzubillah, that doesn't mean that we have bits of Allah within us. Nauzubillah, that is not what it means. Ruh mein se phuka means that the ruh that was created. The hadith tells us that the ruh is light, Allah is light, the angels is light, the Quran is light. तो जब इस रूह की लाइट को कुरान की लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर अल्लाह की लाइट के साथ कनेक्ट होता है, ये कनेक्टिविटी कब बनेगी, जब रूह को टाइम देंगे ना। तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास तो टाइम ही टाइम था। Purely she was selected by Allah for her ibadat. Day and night she was in the temple of Solomon and she was doing ibadat and she was living in the temple of Solomon. तो जब वो कमरे में जाते थे, अब वो छोटी सी बच्ची, सोचे 10-11 साल की, ठीक है, कमरे में जाते थे, खाना रखा हुआ, फ्रूट्स रखे हुए, बेमौसम के फल वो उनके पास रखे हुए होते थे, ठीक है। एंड मरियम अलैहिस्सलाम is saying what? This is from Allah. छोटी सी बच्ची, look at how wisdom Allah had blessed her with. Look at the hikmat Allah had blessed her with. She is giving all credit to Allah. वो ये नहीं कह रही ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि हाँ मैं तो हुई इतनी नेक, देखो तो मेरे पास तो फ्रूट आएंगे, आप तो बूढ़े हो गए इबादतें करते करते, आपके पास तो आज तक फ्रूट नहीं आए। She is not saying that. She is saying it is by the mercy of Allah and Allah gives to whom He wills. ठीक है। और ये करामात होते हैं, ठीक है, ये करामात अंबिया के हाथों पे होते हैं, अनयूजुअल, जिसको कहते हैं अनयूजुअल इंसिडेंट्स, ठीक है। और मौजज़ा जो है वो रसूलों के हाथों पे होता है। मिरेकल इज ओनली टू द प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड ये जो मरियम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, ये मिरेकल नहीं था, ये मौजज़ात थे। अच्छा, एक और चीज भी होती है, ये भी समझने की बहुत जरूरत है। एक होता है शोबदा, ठीक है, मौजज़ा हक है, मिरेकल ऑफ अल्लाह है, एंड इवन द करामात हक है, ठीक है। शोबदा होता है ट्रिकस्टर, ये होता है शैतान की शैतानी अमल होता है, where some people वो जिन को काबू करते हैं और जिन को काबू करके वो ऑन डिमांड आपको दिखाते हैं ये ट्रिक्स। कोई ना कोई चीज को झाड़ेंगे, उसमें से कोई फूल निकल आएगा, कोई, और आप देखते रह जाओगे, उसको वो करामात नहीं है। इफ somebody is doing it on demand and somebody is showing you his power, और उसके अंदर वो करते क्या है, कभी भी अल्लाह को क्रेडिट नहीं देंगे, वो कहेंगे मी आई एम सो पावरफुल दैट लुक एट दिस, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, बिकॉज नाउजुबिल्लाह आज इतनी दुकानें खुली हैं, जो बनते तो ढोंगी अल्लाह वाले हैं, होते मैजिशियंस हैं, होते ट्रिक्स्टर्स हैं। तो जितना हम इल्म हासिल करेंगे, इट शुड स्ट्रेंथन अस इन आवर फेथ एंड वी शुड बी एबल टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज फितनास एंड वी शुड मेक अदर पीपल अवेयर आल्सो, ठीक है। ज़करिया अलैहिस्सलाम, बीइंग अ नबी, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, what is he doing? He is inspired by Maryam alayhi salam. He is impressed. He sees the fruits, he sees her ibadah, and what does he do? He makes a dua then and there. फिर ज़करिया alayhi salam की दुआ आ रही है. What is he saying? Because you see, dua is the source of much khair. Dua is a source of khair. मैं क्यों आपको कहती हूँ पूरी रमजान हर वक्त दुआएं मांगते हैं, हर वक्त आदत पड़ जाए हमें दुआएं मांगने की, अल्लाह पाक हमारी ज़बान को जाकिर बना दे। Because a lot of people they say, अच्छा तकदीर तो लिख दी अल्लाह ने, और मैं अपनी हर क्लास में आपको बताती हूँ कब लिखी थी तकदीर। 50,000 years before creating the universe, Allah has written our taqdeer with our names. How beautiful it is that Allah knew our names even then. You know, in a tafsir of the ulama, it even says, you know, in the Quran where it says that Adam alayhi salam was taught all the names, it says, the ulama say, Allah Pak taught Adam alayhi salam our names also, our names. He taught us, ये तुम्हारी औलाद में से ये सोफिया होगी, ये अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेगी, ये काम करेगी, because he's our father, the first man. एक एक का नाम, एक एक की जिंदगी, एक एक फिल्म जो है ना, वो आदम अलैहि सलाम को दिखा दी थी अल्लाह पाक ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो how closely does Allah know us? मुझे बताएं, अल्लाह जैसा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? जब हम बने भी नहीं थे, उससे 50,000 साल पहले अल्लाह knew our name.
Allah knew our lives. And Allah told them to Adam alayhi salam, how beautiful. अब लोग कहते हैं क्या कि जी तकदीर तो लिख दी गई है, अब दुआ क्यों मांगे? ये अल्लाह से ना उम्मीदी है, नाउज़ुबिल्लाह। और ये पैगंबर है, and he has no child, and what is he doing? He is making दुआ, अल्लाह मुझे ऐसी औलाद दे दे ना, मरियम अलैहिस्सलाम जैसी नेक औलाद दे दे। और जब मांगे अल्लाह से नेक औलाद मांगे। हम जो है ना वो अल्लाह से बैंकर्स मांगते हैं, ठीक है, अल्लाह हमारे बच्चे हार्वर्ड चले जाए, अल्लाह से नेक मांगे, दीन और दुनिया दोनों मांगे औलाद के लिए, लेकिन पहले ईमान की सलामती मांगे, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, समटाइम्स सम तकदीर इज मौलका, मौलक तकदीर का मतलब होता है इट इज सस्पेंडेड, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि तकदीर के अंदर अल्लाह ने ये लिख दिया हो कि अगर ये मांगेगा तो मैं इसको बेटा दूंगा, अगर ये मुझसे, दैट इज मौलक, इट इज सस्पेंडेड, means it's not confirmed. The suspended तकदीर can swing like a pendulum. मांगोगे तो मिल जाएगा और नहीं मांगोगे तो फकीर ही रह जाओगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए दुआएं कहते हैं कि दुआएं जिंदगी तकदीर बदल देने वाली चीज है। वो तकदीर हो सकता है कि वहां लिखी हुई क्लॉज होता है ना, लूप होल होता है लॉ के अंदर, कहते हैं जी लूप होल मिल गया, हो सकता है अल्लाह ने ना लूप लिख दिया हो, हाँ ठीक है ये मुझसे मांगेगी, यहाँ मैं इसको एक्स्ट्रा रिस्क लिखता हूँ, ठीक है, ये मुझसे मांगेगी नेकी हिदायत, मैं यहाँ इसके लिए हिदायत लिखता हूँ। लोग स्पेशली जो लोग गुनाहों की जिंदगी के अंदर, वो कहते हैं अल्लाह ने हमें लिखा ही ऐसा था, हमने करने ही सिर्फ गुनाह थे, ठीक है। सो दे नाउजुबिल्लाह यूज तकदीर एज एन एक्सक्यूज। और यहाँ पे पैगंबर जो है वो दुआ, सो तकदीर कैन ऑल्सो बी रिटन एज कंडीशनल अपॉन योर दुआ, दिस इज व्हाई वी नीड दुआ, ठीक है। अब दुआ इज अ मस्ट। अच्छा, देन एंजल्स आर गिविंग ग्लैड टाइडिंग्स टू Zakaria alayhi salam of Yahya. Yahya alayhi salam, वो कहते हैं was either the cousin of Isa alayhi salam. He was born at the time with Isa alayhi salam. ठीक है। और यहाँ पे कहा गया ना कि he is going to Yahya who shall confirm the word of Allah. Who is the word of Allah? Isa alayhi salam is the word of Allah. Isa alayhi salam is a miraculous birth जो सिर्फ अल्लाह के कलमाए कुन से पैदा हुए थे। There is no father involved in the birth of Isa alayhi salam. So Yahya alayhi salam was sent as a prophet with Isa alayhi salam to confirm, to help Isa alayhi salam in the mission of Allah. ठीक है। और उनके साथ ही उन्होंने तबलीग की थी, ठीक है। अब जब दुआ मांग ली और पैगंबर को बता दिया, ज़करिया अलैहि सलाम को एंजल ने बता दिया कि you are going to have a son, he is going to be called Yahya, खुद हैरान हो गए, खुद परेशान हो गए। अब अल्लाह को कह रहे, अल्लाह कैसे, मैं तो बूढ़ा हूँ। अब दुआ कबूल होने के बाद कह रहे अल्लाह हाउ, आई एम सो ओल्ड एंड माई वाइफ इज बांझ। ये नाउजुबिल्लाह, ये कोई रिबेलियन में नहीं कह रहे हैं, ये मासूमियत में एक निकलता है ना एकदम से, कभी कोई चीज आपको मिल जाती है, अल्लाह ये कैसे हो गया, यू नो, इट्स बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। एंड अल्लाह दे कोई रोक नहीं सकता, जो अल्लाह अता करे, ठीक है। और अल्लाह जो रोक दे वो कोई दे नहीं सकता, इसके ऊपर हमारा यकीन है, ठीक है। देन ही आस्क्ड फॉर अ निशानी। अब जब बेटे की खुशखबरी मिल गई, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे अब यकीन ही नहीं आ रहा ना, कह रहे अल्लाह मुझे कोई निशानी दे दे कि मेरे पास ये बेटा आएगा। अल्लाह सेड ओके, यू वोंट बी एबल टू स्पीक टू एनीवन फॉर 3 days। 3 दिन के लिए ज़करिया अलैहि सलाम वाज नॉट एबल टू स्पीक टू एनीवन। और उसके अंदर क्या कहा, 3 दिन क्या करो, तस्बीह करो, सुबह शाम तस्बीह करो, जिक्र करो। अच्छा, इसके अंदर जब हैप्पी न्यूज आती है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पार्टी करो, राइट। और अल्लाह पाक क्या बता रहे हैं, जब बहुत खुशी की खबर आए तो जिक्र के अंदर बढ़ जाओ। हम तो कहते हैं उस वक्त नाउ वी आर डन, अब तो मिल गई दुआ, अब क्या करना जिक्र, नहीं, उस वक्त इंक्रीज करो जिक्र के अंदर, दैट इज द टाइम। अच्छा, अब आयत नंबर 42 to 51, कितना खूबसूरत ये वाकया जो है ना, इट्स गिविंग अस गूस बम्स, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। That was, now we're starting ayat number 42 to 51, the tafsir of this. When the angel said, O Maryam, certainly Allah has chosen you, purified you, and preferred you above all the women of the world. What an honor, subhanallah. O Maryam, obey your Lord, prostrate yourself and bow in ruku with those who bow. These are the unseen narrations that we inspire unto you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You were not present with them when they cast their pens to know who will be the guardian of Maryam, and you were not present with them when they disputed.
When the angel said, O Maryam alayhi salam, indeed Allah conveys to you the glad tidings of a word from him. His name shall be Al-Masih, Isa, the son of Maryam. He shall be illustrious in this world and in the hereafter, and from amongst those brought near. He shall speak to people from his cradle and in his manhood, and he shall be amongst the pious. She said, O my Lord, how can I bear a child when no man has touched me? He replied, in this way Allah creates what He wills. When He decrees a thing, He merely says to it, be, and it is. Kun fayakun. He shall teach them the book, wisdom, the Torah, and the Injil. We will make him a prophet to Bani Israel, and he shall tell them, indeed, I come to you with a sign from your Lord. I can fashion for you out of clay the likeness of a bird, then breathe into it, and it becomes a living bird by the permission of Allah. I cure him who was born blind and the leper, and I raise the dead with the permission of Allah. I can inform you of what you eat and what you store at your homes. Surely is this as a sign for you, if you are believers. I confirm that which was before me and me of the Torah, and I make lawful for you some of that which was forbidden unto you, and I come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and obey me. Verily, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is the straight path. Now, while we are doing these ayats, I want you to realize the reference of context. The first people who are listening to this khutbah is आप सल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई और ये आयतें सुनाई जा रही हैं क्रिश्चियंस को. उनको दिखाया जा रहा है कि तुमने क्या झूठ बना दिया हक को. स्टोरी एक्चुअली थी क्या, वो सामने बैठे हुए थे मदीना के अंदर जब ये आयतें नाजिल हुई. ऐसा सूरह आले इमरान का फर्स्ट पार्ट इज अ खुतबा टुवर्ड्स द क्रिश्चियंस. So they were sitting there, this delegation, and these ayats came down, and Prophet ﷺ is reciting from the Quran directly the story of Maryam alayhi salam and Isa alayhi salam, the haq story, the pure story, the unaltered story. And what is the last ayat number 51 saying? Isa alayhi salam himself preached to them that verily Allah is my Lord and your Lord. तो ईसा तो खुदा हो ही नहीं सकता. उसने तो अपने मुंह से कह दिया कि Allah is my Lord and your Lord, and follow Him, worship Him and obey me. This is what अभी हमने कल की क्लास के अंदर आपसे सल्लम से भी यही कहा गया था ना कि इताअत करो रसूल की. If you want Allah's love, इताअत करो रसूल की. ईसा अलैहि सलाम was saying the same thing. Follow me, मेरी बात मानो, इताअत करो रसूल की, but worship who? Worship Allah. They twisted it. And what if they twisted Him? शिर्क होता किस में है? शिर्क हमेशा प्यार में होता है, लव में होता है. They didn't hate Isa alayhi salam. They loved him beyond limits. They loved him to the extent that they wanted him to be God also, so they made him a son of God. हमेशा शिर्क जो है वो मोहब्बत की बेसिस से शैतान शुरू करवाता है. इंतहा की मोहब्बत बढ़ गई, नाउजुबिल्लाह उसको खुदा बना दिया. इसकी इजाजत नहीं है. यही तो शिर्क हो गया. Now, if we look at ayat number 42 से शुरू करते हैं, we'll come to this as well. Ulama said it was a main angel who came to Maryam alayhi salam. ये जो conversation हो रही है Maryam alayhi salam से, ठीक है? And in the face of a man. And Murad है कि Jibreel alayhi salam came to Maryam alayhi salam, but he was in the face of a man. ठीक है? He said to Maryam alayhi salam, he used his name. He said, "O Maryam, Allah has chosen you." And she was raised by a Nabi, and she was very honored. Zakaria alayhi salam ने इनकी परवरिश की थी, और अल्लाह पाक कह रहे you have been purified. तहारत थी. किस तरह तहारत थी? In her morality, उनका इखलाक, उनका character pure था. और इस्तफा की, she had been selected from childhood by Allah subhanallah, and her character was pure. She was raised in a pure environment. She was the daughter of a prophet. She is raised by a prophet. पाकीज़ा, मतलब आप सोचें ना, एक बच्चा पैदा ही वो मस्जिद के अंदर हुआ, पला ही वो मस्जिद के अंदर, हसीन तरीन उनका character. She was selected. अच्छा, and in this ayat she's also been purified by the ilzam of the Yahud. Istafaki means she is selected. She has been given preference over all women. अब women की perfection जो है ना, हदीस के मफ़हूम के अंदर कौन mention होता है? मरियम अलैहि सलाम, ठीक है, जो who are going to be honored on the day of क़यामत. मरियम अलैहि सलाम, खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा,
आसिया द वाइफ ऑफ फिरौन, वो ईमान ले आई थी, फिरौन काफिर मर गया था और फिरौन ने उसके ऊपर बड़ा जुल्म किया था ना, वो कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी जब इसकी खाल खींच रहे थे या उसके ऊपर आग डाल रहे थे। एंड आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ठीक है, एंड बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, ये तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। इनको आप औरतों की सरदार कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट एन ऑनर इन अल्लाह's eyes, these women are honored, these women should be our role models। हमारी रोल मॉडल्स कौन है? इंस्टाग्राम खोलें, किसको फॉलो कर रहे हैं हम? कौन है? किम कार्दाशियन, ये कौन है? ये सिस्टर्स, हिल्टन सिस्टर्स, पता नहीं आजकल कौन कौन ट्रेंड्स हैं। देखिए इन्हीं को पॉप स्टार्स आइडल्स बनाते हैं ना। दे आर नॉट आइडल्स, उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। आइडल्स बनाना है, मरियम अलैहिस्सलाम को बनाएं, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा को बनाएं, आसिया को बनाएं, इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी शी वाज स्टिल अ मुस्लिम। आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बनाएं, शी वाज अ स्पीकर। At that time, 1400 years ago, she was one of the best orators and the one who narrated the most ahadith. अभी भी आयशा रजी अल्लाह अन्हा didn't have any children, तो क्या सारी जिंदगी वो यही रोती रही कि हाय अल्लाह मेरे यहाँ तो बच्चा पैदा नहीं हुआ? हम कहते हैं शायद बच्चा पैदा होने पर औरत की वुमनहुड मुकम्मल होगी। नो, she continued with her life, she continued with her life mission and she served Allah in the best way possible। ये है औरत की फजीलत इस्लाम के अंदर। एंड बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, तो इनको अपने आइडल्स, अपने रॉक स्टार्स जो बनाने हैं ना, दीज वुमेन, बिकॉज दे आर ऑनर्ड विद अल्लाह एंड दे आर। देखिए आजकल ना करप्ट कर दिया वेस्टर्न मीडिया ने, सोशल मीडिया ने। हमें लगता है कि वुमेन आर जस्ट सपोज्ड टू बी ब्यूटी सिंबल्स because that's what we see on the fashion cover, on the magazines and social media, and that's why बस फिर हर वक्त हम अपने शक्लों के ऊपर काम करवाते रहेंगे, फेशियल और बोटॉक्स करवाते रहेंगे, तो अल्लाह का काम कब करेंगे? अल्लाह से नहीं, मैंने इतना घटिया थोड़ी तुम्हें बनाया है कि सिर्फ तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी को तुम डिस्प्ले करती रहो। नो, हमारे अंदर बड़ा अल्लाह पाक ने पोटेंशियल रख के भेजा है काम करने के लिए दीन का। एंड बिकम she had become obedient of Allah। इसकी जो कुनूत है इस वर्ड के अंदर, इसके अंदर कॉन्स्टेंस है, ये कॉन्स्टेंस, अच्छा कॉन्स्टेंस है। फिर मेंशन किया जा रहा है वसजूदी सजदा, ठीक है, नमाज, रुकू इज बीइंग मेंशन्ड, पहले सजदा मेंशन किया गया, देन रुकू इज बीइंग मेंशन्ड। नाउ आइदर बिकॉज ये जब इनको बताया गया कि अल्लाह हैज ऑनर्ड यू, जब उनको बताया गया कि तुम्हारे यहाँ ये प्रॉफिट बेटा होगा, पैदा होगा, जब ये कॉन्वर्सेशन हुई तो क्या किया? सजदे में गिर गई मरियम अलैहिस्सलाम। सजदा इज मेंशन्ड फर्स्ट, देन रुकू। हमारी नमाज के अंदर पहले रुकू आता है, फिर सजदा आता है, ठीक है। दे से आइदर शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ एंड फर्स्ट शी फेल डाउन इनटू सजदा इन हम्बलनेस, दिस इज वन एक्सप्लेनेशन। या हो सकता है बनी इसराइल की नमाज ऐसी होती है, हो सकता है, हमें तो नहीं पता, ये बनी इसराइल से थी, पहले नमाज में सजदा आता हो, बाद में रुकू आता हो, वल्लाहु आलम, ठीक है। जब उनको बताया गया यू आर द चोजन वन, फरमा बरदार हो, इबादत गुजार हो, सबसे पहले किसकी तरफ भागी? नमाज की तरफ भागी। रिवायात के अंदर बनी इसराइल के आता है कि व्हेन मरियम अलैहिस्सलाम वाज गिवन दिस खुशखबरी, दिस गुड न्यूज दैट अल्लाह हैज चोजन हर, व्हाट हैपेंड वाज दैट शी स्टूड इन नमाज टिल हर फीट स्टार्टेड टू ब्लीड। ऐसे नमाज में खड़ी हुई थी, ऐसे अल्लाह से इश्क था उनको, ऐसे। और अल्लाह ने देखे ना कैसे उनको चुना, फिर अल्लाह जैसा भी कोई कदरदान नहीं है। Then these ayats that are mentioning that, oh Muhammad, you were not present when their alims were fighting amongst each other, they were throwing their pens। ये हुआ क्या था कि मैंने आपको बताया, तौरात had the निशानी of Maryam alayhi salam coming into Temple of Solomon। तो जितने आलिम थे वो पहचान गए थे कि ये अल्लाह की कोई चोजन बंदी आई है हमारे सर्विस में। दे ऑल स्टार्टेड फाइटिंग, आई एम गोइंग टू टेक हर गार्डियनशिप, आई एम गोइंग टू रेज हर, आई एम गोइंग टू रेज हर। एंड व्हाट दे डिड वाज दे थ्रू पेन्स इन द वाटर वेल, जिस कलम से वो तौरात लिखते थे, क्विल्स होती थी ना उस वक्त, ऐसे पेन्स तो नहीं थे, द क्विल्स दैट अच्छा, अब वो पानी के अंदर उन्होंने क्विल्स डाली, द वन दैट फ्लोटेड अपवर्ड्स, वो उसका जो पेन था वो ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेन था। तो अल्लाह कह रहा है ना कि वी गेव हर इनटू द कस्टडी ऑफ ज़करिया। ज़करिया से परवरिश करवानी थी अलैहिस्सलाम से, तो अल्लाह ने बाकी आलिमों के पेन जो है वो नीचे चले गए, ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेन फ्लोटेड अपवर्ड्स, मींस अगेंस्ट द स्ट्रीम,
It came upwards, and then that is the one who was the only prophet at that time. Zakaria alayhi salam. Yes, he was. And Imran alayhi salam had just passed away. We know that. So he was also, because बनी इसराइल के अंदर ये होता था कि एक वक्त में 2-2, 3-3 पैगंबर थे. ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी तो याह्या अलैहिस्सलाम थे, दोनों पैगंबर थे. मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम थे. एक टाइम पे 2-2, 3-3, लेकिन कौम इतनी ढीठ थी ना कि तब भी नहीं मानती थी. ये even with 2-2, 3-3 prophets being alive amongst them. अच्छा, जब ये मैंने आपको बता दिया कि when they put the pens in the waters, the one that floated upwards, उसको guardianship दी गई मरियम अलैहिस्सलाम की. ठीक है. And why were they all fighting? Because they knew that Imran, he was an honorable man. She came from a very high family. He was a man of God. And दूसरा, I told you इनके book के अंदर ये निशानियाँ थी कि this special girl is going to come into the temple of Solomon. ठीक है. अब मैंने आपको कहा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम या तो बहनोई थे, either he was the sister's husband or he was the mother's sister's husband. ठीक है. अब याह्या अलैहिस्सलाम was born around the same time as ईसा अलैहिस्सलाम. ठीक है. दोनों, ईसा अलैहिस्सलाम is the son of Maryam, याह्या अलैहिस्सलाम is the son of Zakaria. In fact, he is 6 months older than ईसा अलैहिस्सलाम. So हो सकता है they're cousins, हाला का बेटा है याह्या अलैहिस्सलाम, and they're both prophets. ठीक है. मरियम अलैहिस्सलाम got basharat by kalimat. ठीक है. And ईसा अलैहिस्सलाम was born by Allah's कलमाए कुन. तो इसमें कोई वर्ल्डली असबाब नहीं थे. कलमातिन मिन. एंड इनका नाम भी बताया गया ईसा अलैहिस्सलाम का, मसीह. ये कुरान की आयत के अंदर लिखा हुआ है, his name was given by Allah, मसीह ईसा the son of मरियम. अच्छा, ईसा को हिब्रू लैंग्वेज के अंदर याशू, यस, मसीह, यस. अच्छा, याशू जो है वो बनी इसराइल की जो लैंग्वेज थी हिब्रू, उसके अंदर उनका नाम याशू था. ईसा इज याशू. ठीक है. क्रिश्चियंस ये भी कहते हैं, याशू भी कहते हैं, दे प्रे टू याशू, यासू, या याशू. अच्छा, अल मसीह ये उनका लक़ब दिया गया था. मसीह का मतलब होता है बिकॉज ही वुड टच एंड ही वुड हील. दिस इज व्हाई ही वाज नेम्ड मसीह. एंड मसीह का एक मतलब ये भी होता है कि कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग. ठीक है. वजईहन, बहुत बाइज्जत, बहुत मुकर्रम. Isa is his name. Masih is his laqab. Isa is his name. Masih is like a doctor. Yeah. And he will speak. निशानियाँ क्या बताई गई? He will speak in the mother's lap. This was the miracle. He was 1 day old, and when Maryam alayhi salam came back to the temple of Solomon with a child. पहले तो वो चली गई थी. सूरह मरियम के अंदर हमें पता है she went all alone, 11-12 years old. She delivered this child. She comes back with this child, and everybody is looking at her and saying, Maryam, तुम्हारे पास, yes, she was only 12 years old. मगर आप उसको child नहीं कह सकते. उस वक्त का 12-year-old, आज का 18-16 साल की इंटेलिजेंस, मतलब आप समझे. इसलिए कि उस वक्त मैच्योरिटी ज़्यादा थी. उस वक्त ये चाइल्डहुड, बचपन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, एंड माइंड्स बहुत जल्दी डेवलप. और वो तो बचपन से ही इबादत के अंदर थी. तो वो 11 साल 12 साल की हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी माशाल्लाह से, क्योंकि वो तो अल्लाह की खिदमत में पहले दिन से ही दे दी गई थी. ठीक है. सो व्हेन शी वाज देयर, व्हेन शी ब्रॉट द चाइल्ड बैक, उन्होंने कहा, मरियम ये क्या हुआ, तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आया. ठीक है. तो शी डिड नॉट स्पीक. अल्लाह पाक ने उनको बता दिया था तुम नहीं बोलोगी. She did not speak, and Isa alayhi salam was 1 day old, and from miracle of Allah, he said, Inni Abdullah, मैं अल्लाह का बंदा हूँ. एक दिन का बेबी ये बोल पड़ा, और सारे आलिमों ने ये देखा था मिरेकल. ठीक है. So that why अल्लाह सिर्फ guided मरियम अलैहि सलाम. अल्लाह को पता था ये तो इल्जाम लगा देंगे नाउजुबिल्लाह इसके ऊपर जिना का. तो ईसा अलैहि सलाम से बुलवाया to maintain the honor of मरियम अलैहि सलाम, ताकि कोई इनके ऊपर इल्जाम ना लगा सके. As long as मरियम अलैहि सलाम and ईसा अलैहि सलाम were alive, किसी ने इल्जाम ये नहीं लगाया. But after they died, बनी इसराइल के स्कॉलर्स ने नाउजुबिल्लाह क्या क्या इल्जाम लगाए हैं मरियम अलैहि सलाम पे, और अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं.
अपनी बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, अपनी डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये इल्ज़ाम लगाए हुए हैं नबी की मदर के ऊपर, नाउज़ुबिल्लाह। तो अच्छा, फिर कहा गया है कि ही विल ऑल्सो स्पीक एट हाफ एज, ही विल ऑल्सो स्पीक एट हाफ एज। इसमें क्या कमाल है? हाफ एज पे तो हर कोई बोलता है, ठीक है, इसमें भी कमाल है सुभान अल्लाह इसके अंदर। और जो इनके आलिम थे क्रिश्चियंस, वो इस कमाल को जानते हैं। इसके अंदर निशानी इस तरफ को है कि when ईसा अलैहिस्सलाम was taken up to the sky, ये कहते हैं ना कि क्रॉस के ऊपर उनको लटका दिया था। क्रॉस के ऊपर तो नहीं लटकाया था, एक्चुअली अल्लाह पाक फिजिकली took ईसा अलैहिस्सलाम up to the sky, पूरे के पूरे अल्लाह ने उनको ले लिया था up to the heavens. So they say in the रिवायात that his age was 33, ठीक है, जवान थे, his age was 33, and when he comes back onto the dunya, he is going to be what? 35 when he comes back. वहाँ पे he is not going to age, अब तो हजारों साल गुजर गए, उनकी एज 33 पे रोक दी गई है। जब 33 पे ये वापस नीचे आएंगे, he is going to reach 35। 35 को मिड एज, अधेड़ उम्र जिसको कहते हैं, वो 35 कहते हैं, ठीक है। सो 35 पे वो फिर बोलेंगे का मतलब है when he returns back onto the dunya, then he is going to speak again, he is going to address people at half age also, ठीक है। And he spoke in his childhood like he was an adult. इसकी तरफ भी निशानी है। ईसा अलैहिस्सलाम जब छोटे से बच्चे भी थे ना, तब भी बड़ों वाली बातें करते थे। इवन याह्या अलैहिस्सलाम, उनकी रिवायत के अंदर आता है कि याह्या अलैहिस्सलाम was 3 or 4 years old, but he was already chosen as a prophet. तो उनको किसी ने कहा याह्या जाओ खेलो, उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया। इतनी खूबसूरत बात, इतने से सोचे कितने क्यूट लगे होंगे ना, बट he knew his mission even when he was 4 years old. He said मैं खेल तमाशों के लिए नहीं आया हूँ दुनिया के ऊपर। And then even मरियम अलैहिस्सलाम, देखें, they were, because they were chosen, because they were purified, ये अंदर बाहर से प्योर थे। The whole family was in this, or no? Yes. They were the chosen ones in terms of that. They were the family, बनी इसराइल नहीं, बनी इसराइल है तो असल में याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा खानदान, उसी के अंदर पैगंबरों की नस्ल चल रही है। बनी इसराइल is from the 12 sons of याकूब अलैहिस्सलाम। So basically उन्हीं में प्रॉफिट्स आए थे जी जी। और मेन प्रॉब्लम ही इनको ये हुआ था ना, उस पर इनका दिमाग खराब हो गया कि हम तो इतने नेक हैं, पैगंबर आते ही हमारे अंदर है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से लास्ट प्रॉफिट अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऊपर भेज दी, उनको प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा ये कैसे, ये बदुओं के खानदान से जिनमें से एक पैगंबर नहीं निकला, तो सारे पैगंबर एक तरफ और एक पैगंबर सब पे भारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि देखे ना हुआ क्या था, एज ए नॉट बाय सेइंग पैगंबर सबकी शान जो है वो बहुत ऊंची होती है, और आई मीन टू से ऑल ऑफ देम दे जस्ट कुडंट एक्सेप्ट दैट। व्हाई? बिकॉज लास्ट प्रॉफिट का बहुत मर्तबा, बहुत ऑनर था, सील ऑफ प्रॉफिटहुड थी। दे वांटेड हिम टू कम फ्रॉम बनी इसराइल। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की शान, अल्लाह सेंट हिम फ्रॉम बनी इस्माइल। He didn't mention it in their books, but he even mentioned their name. He even mentioned the name of Muhammad. It's in the Torah, it's in the Injil. They deleted it, they changed it. It was written, then the name, the description, he will come from the land of dates. पूरी निशानियां उनके आलिमों को पता था, और जब वो देखते थे आप सल्लम को, उनको पता था। तो ये जब सामने क्रिश्चियन डेलीगेशन बैठी हुई थी, इनके जो प्रीस्ट एंड बिशप्स थे, उन्होंने बाइबल तो पढ़ी हुई थी ना, तो बाइबल जब पढ़ी हुई थी, उनके पास सारी निशानियां थी, वो तो देख के पहचान गए थे कि आप सल्लम आखिरी पैगंबर अल्लाह थे। बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ ईगो, ईगो में शैतान आके मारते थे, तुम इसकी अब अरब, तुम इस अरब प्रॉफिट की तुम फॉलोअर बनोगे नहीं, तुम तो इतने शान वाले हो, तुम तो इतने नेक हो, तुम्हें बनी इसराइल को ईगो ने मारा। चले तब के उलमा नहीं माने, आज के उलमा को भी पता है ना कि 2021 में हम बैठे हैं, अब तो अल्लाह का कोई रसूल नहीं आना है, सारी निशानियों से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया, उनको पता है कि ये लास्ट नबी है। क्यों नहीं बनते मुसलमान, आज क्यों नहीं आते दीन की तरफ? अच्छा होता क्या है, जब हम ये देखते हैं, ये वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी सी व्हाट बनी इसराइल एंड द क्रिश्चियंस डिड, हमारा अंदर से खून जलता है कि सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हाउ डेयर दे डिनाई हिम, राइट? क्यों नहीं मान रहे? इतनी प्यारी आयतें, इतनी प्यारी हदीस, इतने प्यार से आप सल्लम बुला रहे हैं,
क्यों नहीं मान रहे? ईगो है। चलिए इनको छोड़ देंगे तो काफिर है। हम क्यों नहीं मान रहे? हमारे सामने पूरा कुरान खुला है, आप सल्लल्लाहु की हदीसें खुली हैं, आप सल्लल्लाहु बुला रहे हैं दीन की तरफ। व्हाट डू वी डू? हम डर डर के 10% लेंगे, 20% लेंगे, 30% लेंगे। हम दिल 100% खोलते हैं कुरान के लिए कभी? हम कहते हैं नहीं भाई, दुनिया संभालें कि दीन संभालें, दोनों नहीं संभलेंगे। पहले दीन संभालें, दिल खोल दें 100%। और आज रमजान है, पूरे दिल से अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह तू बना दे मुझे मुसलमान, जैसा तू चाहता है ऐसा मुझे बना दे। हैंड योरसेल्फ ओवर टू अल्लाह। बाकी सारी दुनिया भी अल्लाह ने बनाई है ना, संभलवा देगा इंशाल्लाह। लेकिन द टर्निंग ऑफ द हार्ट, यू सी द ब्यूटी ऑफ द लव ऑफ अल्लाह इज दैट अल्लाह डज नॉट फोर्स इट अपॉन एनीबॉडी। किसी को अल्लाह चाहे, अल्लाह का कलमा कौन आ जाए, पूरी दुनिया पे देयर आर 7.9 मिलियन पीपल अलाइव आई थिंक टुडे। 7.9 मिलियन है, बिलियन है, कुछ इसी तरह का फिगर है, मिलियन 7.9 बिलियन। अच्छा, ये जितने इंसान हैं ये सब सजदे में गिर जाए, अल्लाह के पास इतनी पावर क्या नहीं है? नाउज़ुबिल्लाह है। लेकिन अल्लाह अपना इश्क, अपनी मोहब्बत जबरदस्ती नहीं देता। वो कहता खुद ढूंढो, खुद भटको, खुद आओ, खुद सीखो। और अंदर से यर्निंग दे के भेजा। अल्लाह जालिम नहीं है, उसने अंदर रूह के अंदर पहचान दे के भेजी थी इस लव की। हम सारी जिंदगी ढूंढते ही इसको, हम सारी जिंदगी भटकते फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द अल्टीमेट हक। दिस इज द लव ऑफ अल्लाह। दिस इज व्हाट वी वर बोर्न। वी वर बोर्न सर्चिंग फॉर अल्लाह, एंड नॉट जस्ट अस, एवरी काफिर, every rebel of Allah, every sinner of Allah, every one of them is born with this yearning of Allah. उनका दिल करता है, वो ढूंढते हैं। जैसे नाफरमान औलाद होती है, वो चाहती है, वो तड़पती है जब माँ नाराज होती है, वैसे ही वो तड़पते हैं। उनको पता है अंदर के वो अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, बस they can't come to it. वो चेन्स पड़ी हैं हाथों के अंदर, दुनिया, the fear of the dunya, the love of the dunya, the chains of the shaitan. They handed themselves over too much and now they can't pull back. ये है। तो इन आलिमों के साथ भी ये था, they sold their deen for their ego. And अब मरियम अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन आ रहा है इन आयतों के अंदर, कितना खूबसूरत सवाल है। अल्लाह, no man has touched me, how will I get a child? What does it show? It shows intelligence. She's 12 years old, कोई वो भोली नहीं है, कोई अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। अल्लाह, हो ही नहीं सकता ना, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, हाउ? और वो तो प्योर थी, उनके पास कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं था जिनसे उन्होंने कोई गंदी चीज सीखी हो। वो तो प्योरिफाइड पली थी इन द टेम्पल ऑफ सोलोमन। हाउ डिड शी नो? बाय ऑब्जर्वेशन शी न्यू दैट दुनिया के ऊपर जब शादी होती है उसके बाद बच्चा होता है। उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई, मेरे यहाँ बच्चा अल्लाह कैसे होगा? एंड अल्लाह सेड आई गिव। Allah says the Arabic word is yakhluquh. Allah does what he wants. He creates what he wants. And in Yahya alayhi salam, the word used is yafluqu. That Yahya alayhi salam, he will know how to read and write by birth. Yahya alayhi salam खुद उन्होंने तौरात पढ़ी थी, उनको दीन, जैसे मैं आपको बैठ के तफसीर सिखा रही हूँ, उनको तौरात का इल्म किसी ने नहीं सिखाया था। He read the book himself. Why did he read it himself? Because the alims were already changing the words, right? Allah wanted him to take out the purified tafsir of the Torah. So Yahya read it himself. इसके अंदर एक चीज और बताई जा रही है। याह्या में कितना फर्क होगा? Thousands of years. Musa alayhi salam, Isa alayhi salam was the last prophet of Bani Israel. And Musa alayhi salam के बाद मेरा ख्याल है कई हजार साल होंगे जो पैगंबर आते गए बनी इसराइल में से। Then Isa and Yahya were the last two before Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They were the last two prophets to come down onto the dunya. Then it was Muhammad. अच्छा, एक निशानी इसके अंदर ये भी बताई जा रही है कि he will come as a prophet. Isa will come as a prophet to what? बताया जा रहा है to बनी इसराइल। बनी इसराइल क्रिश्चियंस जो आज मिशनरी हैं, वो तबलीग कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उनको नहीं कहा था तबलीग करने को। अंडरस्टैंड, तौरात, इंजील जो भेजी गई बाइबल, व्हेन दे चेंज्ड द तौरात, द आलिम्स मेड द तौरात आइदर टू
difficult, or they took out the mention of, उन्होंने अपनी किताबों से जन्नत और जहन्नम दोनों निकाल दिए. Everything was about the dunya. When the alims read the land of honey and milk, rivers of honey and milk, हम क्या कहते हैं? honey and milk की नहरें कहाँ होंगी? जन्नत में होंगी. जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब वो तौरात पढ़ते थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया जेरूसलम, जमीन, उनको जमीन चाहिए. टैबलेट्स कहीं निकली थी तौरात की, जी, the 10 commandments. The 10 commandments. तो वेटिकन में बहुत खलबली मच गई थी, पर इन्होंने फिर वो कहीं दबा दी है, गायब कर दिए. They are not available. ईसा is not the son of, he's not the son of God. He is not God. Yes, he's not God. A few. This is The 10 commandments are part of the Tawrat that came down from Allah. They were given by Allah. 15-20 years ago maybe. Yeah. Within this. उस वक्त मीडिया इतना वो नहीं था. They say that they found these tablets and then they hid them because Perhaps in Masjid Aqsa. maybe they've hidden them somewhere. नहीं, खैर अक्सा तो अब मुसलमानों के कब्जे में है. इन्होंने कहीं और दबाई नहीं है ये. और वो कहते हैं कि उसके अंदर मेंशन था ना कि ईसा इज नॉट द सन ऑफ गॉड, ही इज अ प्रॉफिट, तो इसीलिए उन्होंने ये गायब करवा दी थी. तो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु को देख के वो दीन में लेकर आए, तो पता चलता है ना. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू वांट टू यूज योर दीन, आज भी हमारे उलमाओं को अल्लाह पाक हिदायत दे, व्हेन समबडी वांट्स टू यूज अल्लाह एज अ रबर स्टैम्प, अल्लाह एज अ ब्रांड नेम कि अल्लाह मेरा है और किसी का नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है? उससे उनको पावर मिलती है. फिर क्रिश्चियन चर्चेस के पास क्या होता है? बहुत पैसा आता है. ठीक है, देन इट बिकम्स अ मनी गेम. कारोबार बनाते हैं दीन का. अब जब कारोबार बना दिया, बनी इसराइल के उलमा के साथ ये होता था. आपको पता है कि वो जितनी ज़कात लेते थे वो अपने सिनेगॉग्स के अंदर ही रखते थे, बाहर गरीबों को कुछ नहीं देते थे. ये उन्होंने इतना ट्विस्ट कर दिया था दीन को. अच्छा, actually the book that Isa alayhi salam brought, what these ayats are saying is that I have come as a prophet to Bani Israel, I have come to confirm what has come before me, the Tawrat. Isa alayhi salam की बेसत के दो मकसद थे. One, to correct the शरीयत जो वो चेंज कर रहे थे तौरात में. So Tawrat, शरीयत is in Tawrat and the explanation of that शरीयत is in the Bible. समझ आ गई आपको book? The book part 1 is Tawrat and part 2 is Bible. So the Christians and the Jews were supposed to be one. The Jews were supposed to bring Iman on Isa alayhi salam. They were supposed to be one nation and they were supposed to read the Tawrat and the Bible joined together. Tawrat के अंदर शरीयत आ गई, Bible के अंदर explanation आ गई. ठीक है? These two books together. They separated it. Bani Israel did not bring Iman on Isa alayhi salam. In fact, Bani Israel was the one who killed Isa alayhi salam. According to them, they hung him on the cross. They persecuted him. उनको क्या कहा था? उनको कहा था कि you are a magician. बनी इसराइल की शरीयत के अंदर जादूगर की सजा मौत है, as is the Muslim शरीयत. Magician is supposed to be hanged to death. उसको मार देना चाहिए. ठीक है? ये तो नाउज़ुबिल्लाह they tried and proved that he is not a पैगंबर, rather he is a magician. And he is from the devil. इस तरह तो उनको क्रॉस के ऊपर चढ़ाया, ये इल्जाम लगा के पैगंबर के ऊपर, जबकि वो पहचान गए थे, जब वो बाइबल उनको पढ़ के सुना रहे थे, वो पहचान गए थे अल्लाह का कलाम है. उनको पता था ये अल्लाह का कलाम है, उनको पता था ये अल्लाह का नबी है. क्या नहीं छोड़नी थी? अपनी दुकानदारी नहीं छोड़नी थी. वो कहते थे जो हम लिखते, इनके एक्चुअली आलिम्स और प्रीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि दे हैड बिकम स्ट्रॉन्गर देन द प्रॉफिट्स. इतनी पॉलिटिकल पावर इनके पास. द मोस्ट डेंजरस थिंग इज व्हेन यू आर मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद दीन. हालांकि इनके कुछ नबी ऐसे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे और पैगंबर भी थे. ठीक है, तो कुछ ऐसे नबी थे जिनको बादशाह भी मिली और उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस भी की और वो नबी भी थे. लेकिन आज के जमाने में क्या होता है? व्हेन यू मिक्स दीन एंड यू ट्राई एंड बाय पॉलिटिक्स विद इट, फिर होगा क्या? पॉपुलर वोट के लिए दीन चेंज भी तो कर दिया जा सकता है. कर देते ना, वोटों के लिए अल्लाह बिक गया, यहाँ पे उनके पैसे के लिए, उनकी ब्रांड नेम के लिए अल्लाह बिक गया. नाउज़ुबिल्लाह. अच्छा, व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज
अगेन मेरा दिल करता है कि मैं आपको सब बता दूँ ना, आई कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, फिर आयतें जो है वो रह जाती हैं. Never mind. This It is most every prophet who came down before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a prophet sent to a nation. But Isa alayhi salam कह रहे हैं, I came as a prophet to Bani Israel. He was sent to a nation and it was time bound. ठीक है? Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the only prophet mentioned in the Quran who was international prophet sent till the day of Qiyamah. Rahmatul lil Alameen till the day of Qiyamah, his prophethood is established. In fact, Isa alayhi salam, he told his followers that you should only teach to Bani Israel. उनको convert करो. ठीक है, एक उम्मत बनते हैं ये, उनको convert करो. तौरात उनके पास है, इंजील उनको सिखाओ, because इंजील is part 2 of तौरात. ठीक है? Similar वैसे देखा जाए. I told you, शरीयत में आपको बताती हूँ मसला क्या हुआ. शरीयत, the laws are in Tawrat, and Injil has all of the beautiful explanations from Allah कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है तुम्हारे लिए, ये शरीयत फॉलो करोगे इससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये तुम्हारी पर्सनालिटी बनेगी. तो इंजील के अंदर सारी ब्यूटीफुल मीठी मीठी बातें हैं. The Christians were also supposed to follow the Tawrat and the Injil. What did the Christians do? They cut the Tawrat. They said तौरात बनी इसराइल की किताब है, इंजील क्रिश्चियंस की किताब है, बाइबल और बाइबल Israel as well. हाँ, They were Bani Israel as well. they became Christian. उन्होंने अपनी दुकानदारी अलग बना ली, वैटिकन अलग बना लिया रोम में, पोप के पास भी बहुत पैसे हैं, सारी दुकानदारी चल रही है ये, अल्लाह की मोहब्बत में कुछ भी नहीं हो रही है. Then what happened is when you cut off the Torah from the Bible, बाइबल के अंदर कोई शरीयत है ही नहीं, उनकी बुक के अंदर कुछ भी हलाल नहीं है, कुछ भी हराम नहीं है. शराब हराम था बनी इसराइल की शरीयत के अंदर. हाँ, they have no शरीयत. वो इसीलिए तो वो आपने देखा होगा काली औरतें चर्च में जाके बस नाचती रहते हैं, हिम्स गाते रहते हैं अल्लाह के इधर से उधर, डांसिंग क्वायर्स हैं उनके. दैट्स इट. वो कहते हैं हम तो बस ऐसे ही अल्लाह की जन्नत पहुंच जाएंगे, हमें कुछ फॉलो. बनी इसराइल की शरीयत के अंदर शराब हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, वो कोशर खाते हैं. उन्होंने कहा हम नहीं लेते, हमें चाहिए ही नहीं है शरीयत, हम फ्रीलांस हैं. फ्रीलांस मुस्लिम्स बन गए वो, नाउजुबिल्लाह. क्रिश्चियंस दे कट देमसेल्व्स ऑफ फ्रॉम ऑल ऑफ द शरीयत. सो ये भी आयतें उनको बता रही हैं व्हाट मिस्टेक यू मेड. अगर हम अपने आप को कंपेयर करें मुस्लिम्स को, अगर तो हमारे अंदर और जूस की शरिया में बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन ये क्रिश्चियंस में तो मुझे कोई सिमिलरिटी लगती नहीं है, क्योंकि उन्होंने शरीयत ही नहीं ली ना. क्रिश्चियंस लेफ्ट द शरीयत विद बनी इसराइल. उनके अंदर हलाल हराम है, बल्कि जिस तरह वो अपना गोश्त कोशर करते हैं, वो हमारे हलाल से भी ज्यादा हलाल होता है कोशर गोश्त. यू कैन ईट कोशर मीट बिकॉज वो उसको जो काटते हैं वो उसको हमसे ज्यादा साफ करते हैं. हमारे ऊपर तो खैर हलाल जिस तरह करना है हम उस तरह मीट को हलाल करते हैं, लेकिन कोशर. अच्छा, शरीयत प्रॉब्लम क्या थी तौरात के अंदर? द आलिम्स ऑफ बनी इसराइल मेड इट टू डिफिकल्ट. इतनी मुश्किल कर दी शरीयत, इतनी मुश्किल कर दी शरीयत कि इट इज अनप्रैक्टिसेबल. द शरीयत ऑफ बनी इसराइल, इट इज अनप्रैक्टिसेबल. ठीक है. फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था निशानियां देके, मिरेकल्स दिखाए थे. ठीक है. मूसा अलैहिस्सलाम वाज सेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ मैजिक. तो उनका मिरेकल क्या था? वो आसा फेंकते थे, वो सांप बनता था, वो सारे जादू खा जाता था. दैट वाज हिज मिरेकल, राइट. ईसा अलैहिस्सलाम वाज सेंट एट अ टाइम व्हेन मेडिसिन वाज राइजिंग. ठीक है. मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा innovations आ गई थी. Medical sciences were going higher, and so at that time he was sent as a Messiah. He was sent as a healer, a miraculous healer from Allah to show the powers of Allah. And what did he do? One of his miracles was he would shape a bird out of clay, and he would say कि ये अल्लाह इसको उड़ा दे. And by the permission of Allah, he used to say बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह. जब वो उड़ाते थे वो बर्ड जिंदा होके उड़ जाती थी. Then he said I cure. अब सोचे, he brought the dead to life. मुर्दा को जिंदा करना इतना बड़ा मिरेकल अल्लाह ने इनको ब्लेस किया था. And he used to cure the blind, he used to cure illnesses, and then he used to say, should I tell you what you eat? Lepers as well, yes. And what you eat and what you store in your houses.
ठीक है, ये सब वो उनको बताते थे. He said I have come to do तस्दीक ऑफ तौरात. अब सामने जो क्रिश्चियन मिशनरीज बैठे हुए हैं उनको क्या सुना रहे हैं? कुरान की आयतें ये सुना रही कि तुमने तो तौरात छोड़ दी, तुम्हारा तो नबी आया था तस्दीक करने की तौरात की, तुमने कैसे छोड़ दी? ठीक है. देन द यहूद आलिम्स. अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि द क्रिश्चियन आलिम्स एब्रोगेटेड शरीयत, they have zero शरीयत, and the यहूद आलिम्स made शरीयत too difficult. तो इस आयत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि I have come to make your शरीयत easier for you. Let me make it doable for you. इतनी, just to give you an example, आज भी आपको कुछ practicing Jews हैं जो to the word शरीयत इस्तेमाल करते हैं. They follow their शरीयत and their शरीयत is very difficult. But they practice it. वो जो आपको मिलेंगे टोपी वाले और लंबे बाल घुंघराले उनके, you can recognize practicing Jews separately. Jews की शरीयत के अंदर एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है, कहने को बात बहुत खूबसूरत है. वो कहते हैं गाय के बछड़े को माँ के दूध के अंदर मत पकाओ. Don't cook the meat of the baby cow in the mother cow's milk. ये जुल्म होगा. ठीक है, हलाल और हराम की शरीयत बता रही हूँ. अब उन्होंने किस एक्सटेंट तक लेके गए? आई एम ट्राइंग टू शो यू सुभान अल्लाह हाउ इजी द शरीयत ऑफ इस्लाम इज and how they made the Shariat difficult. Now what happened was, first of all, you know how we eat fettuccine pasta? There's meat and there's milk and cream, cheese inside it. They cannot eat a dish like this. They cannot mix the two. The meat has to be cooked separate always, and all dairy products have to be cooked separate. ठीक है, they cannot mix the two. यही कह रही है उनकी ये शरीयत. Yes. अब ये इनके हलाल हराम को अब आप देखें ना, साइकोटिक लेवल्स तक ले गए. कैसे लेके गए? उन्होंने कहा पहले दोनों साथ नहीं पका सकते. ठीक है जी, जब साथ नहीं पका सकते, अब एक बर्तन में नहीं पक सकते. The meat that is the pot that is used to cook meat is never used to cook milk or dairy products. So they had to have separate pots. ठीक है, अब जब दो पॉट्स उन्होंने एक साथ रखी स्टोव के ऊपर, तो एक पॉट का धुआं उठा मीट का और डेयरी प्रोडक्ट्स का धुआं उठा. अब वो धुआं मिल गया. अब उन्होंने कहा नो, ये धुआं भी नहीं मिल सकता. फिर उन्होंने क्या किया? दे मेड टू सेपरेट किचन्स. द प्रैक्टिसिंग Jews have within one kitchen two separate sinks, two separate stoves, two separate dishwashers. एक में गोश्त पकता है, एक में डेयरी प्रोडक्ट्स पकते हैं. ऐसे किया, अनप्रैक्टिसेबल शरीयत बना दी है जी. यस, दिस इज, वो थोड़ी अपना बताते हैं कितनी मुश्किल शरीयत बना दी. तो क्यों बनाई? इनको अल्लाह के अजर मिल रहा है. पहले मुझे ये बताएं, 2 किचन भी बना लिए इन्होंने, अपनी तरफ से बनाई, खुद मुश्किल कर दी. तो ईसा अलैहिस्सलाम असल में आए थे, इनके आलिम. अच्छा, इनके आलिमों को ये भी शौक है ना कि सूडो नेक बनने का. ये सूडो नेकी नहीं, उन्होंने सारी शरीयत को मुश्किल करते चले गए. ठीक है, अब जो मुश्किल कर ली इतनी, तो ईसा अलैहिस्सलाम केम, ही सेड आई हैव कम टू मेक योर शरीयत, एब्रोगेट सम ऑफ इट. जो तुम ओवर हो गए और एक्सट्रीम शरीयत तुमने बना दी, उसको अल्लाह के हुक्म से मैं खत्म कर दूंगा, और जो तुम्हारी मुश्किल शरीयत है उसको आसान कर दूंगा. तो इनको क्या मुसीबत थी, आ जाते ना ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आते, इनकी अपनी जिंदगी आसान हो जाती. Yes, हज़रत ईसा की वर्ड्स आ रहे हैं इस आयत के अंदर. उन्होंने बनी इसराइल को क्या कहा था. ठीक है, नाउ इस्लाम हैज द मोस्ट ईजीएस्ट शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह. और इस्लाम के अंदर शरीयत एंड शरीयत के अहकामात की हिकमत, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं. ठीक है, इट्स इन वन बुक. ठीक है. अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम इज आल्सो सेइंग, लाइक आई टोल्ड यू इन आयत नंबर 51, अल्लाह इज माय रब एंड योर रब. अल्लाह की इबादत करो. One thing you just said that तबलीग नहीं है. हाँ, तो Jews तबलीग नहीं करते. They don't. Jews cannot convert. You have to be born a Jew. That's why they're only 1%. और वो भी the mother has to be a Jew. इनकी नस्ल चलती है मदर से, और इनकी मदर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि इनकी नस्ल खत्म हो गई है. It's almost on. खिदमत भी की जाती है. दे गेट डॉलर्स, hundreds and thousands of dollars मिलते हैं जितने ये बच्चे पैदा करें, ताकि ये यहूद की नस्ल चले आगे. ये दुनिया के ऊपर 1% है. Fed in a way to produce very healthy children. Yes,
ये उनको ख़ास तौर पे जो है ना, ये स्टेट पैसे भी प्रोवाइड करती है, खाना भी प्रोवाइड करती है, हर चीज़ उनको दी जाती है. अच्छा, नाउ विल कंटिन्यू आयत नंबर 52 to 54. When Isa alayhi salam sensed disbelief from them, he said, "Who shall be my helpers in the cause of Allah?" The Hawariyeen replied, "We shall be Allah's helpers." Hawariyeen ईसा alayhi salam के लिए ऐसे helpers थे जैसे आप सल्लम के लिए सहाबा थे. They were the helpers of Isa alayhi salam. ठीक है? Hawariyeen. And we shall be Allah's helpers. We believe in Allah, and you be the witness that indeed we are subservient to Allah, our Lord. We believe in what you have revealed, and we have followed the messenger, so enroll us among those who have testified to the truth. This is ayat number 52 to 54. अच्छा, अब आप ये समझें कि ईसा अलैहि सलाम की मिरेकल भी था. Many miracles were shown at his hand. Still बनी इसराइल ढीठ तरीन कौम इनको डिनाई करती गई. ठीक है? ये आयत जो है, एक तो आयत के अंदर जो कुरान के अंदर आयत है, ये भी आयत है, लेकिन मिरेकल को भी आयत कहा जाता है. ठीक है? आयतुल कौनिया कहा जाता है, नेचुरल मिरेकल उसको, आयतों को. एंड ईसा अलैहि सलाम तो पूरे के पूरे ही अल्लाह की आयत थे. इवन नाउ ही इज अल्लाह's आयत. ही इज अप विद हिम लिविंग इन द स्काइज. हिज बर्थ वाज अ मिरेकल. हिज डेथ अकॉर्डिंग टू देम इज अ मिरेकल, ऑल्दो वी बिलीव ही इज लिविंग इन द हेवंस विद अल्लाह. His life was a miracle. And miracle होता क्या? Against scientific laws. उनकी आंखों के सामने सारे मुर्दा को जिंदा करके दिखा दिया, फिर भी ईमान नहीं ला. कैसे लीड थे? अच्छा, then एक होता है आयतुल शरिया. आयतुल शरिया is the book, like the Bible, like the Torah and the Quran. ठीक है? और ईसा अलैहि सलाम हक लेकर आए थे, और हक बताने वाले के लिए सबसे जरूरी क्या है? सब्र. रिएक्शन नहीं दे सकते. सब्र इज नेसेसरी बिकॉज लोगों से रिएक्शन आता है. बनी इसराइल से रिएक्शन आया था. दे बिकेम ब्लड थर्स्टी. उनको ईसा अलैहि सलाम की जान से उनको मारना था. इवेंचुअली इस हद तक आ गए थे, और उन्होंने बहुत पैगंबर मारे हैं बनी इसराइल ने. यहूदी उलमा बिकेम अगेंस्ट हिम. लाइक आई टोल्ड यू, they started creating schemes against Bani Israel. They went and they made an alliance with the Romans. उनके साथ मिलके they tried to prove कि देखो ये जो है ना, ये जादूगर है, ये नौजुबिल्ला शैतान ने इसको भेजा है, ये पैगंबर नहीं है अल्लाह का, ये जादू करके दिखाता है, ये बहुत डेंजरस है, इसको तो हमें मारना ही पड़ेगा. ठीक है? अच्छा, अब कुफर पे आ गया. दुश्मनी किसकी कर रहे थे? रसूल की ना. असल में दुश्मनी किसकी कर बैठे? अल्लाह की, रसूल की. अल्लाह के रसूल की दुश्मनी की, तो अल्लाह की दुश्मनी कर बैठे. एंड दे डिनाइड ईसा अलैहि सलाम बिकॉज ऑफ एरोगेंस एंड द लव ऑफ पावर. सिंपल रीजन, 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड द क्रिश्चियंस आर बीइंग शोन. वो कभी कहते हैं ना कि बेटी को सुना के बहू को सुनाया जा रहा होता है. अब कहानी जो है वो बनी इसराइल की है. एंड क्रिश्चियंस आर बीइंग शोन अ मिरर कि तुमने क्या किया मोहम्मद को डिनाई करके. जब बनी इसराइल वाज डिनाइंग ईसा अलैहि सलाम, तब तो तुम तड़प रहे थे. तो अब तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह का रसूल खड़ा है. अब when you are denying them, you are as bad as बनी इसराइल. अब तो तुम भी दुश्मनी पे आमादा हो गए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के. तो उनको दिखाया जा रहा है. ठीक है? थिंक अबाउट इट. ये कुरान के अंदर ये आयत आ रही है ना. अच्छा, फिर if you do the same with Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will also be a kafir. Think about it. फिर हवारियों ने क्या कहा? मन अंसारी इल्लल्लाह. पहले ईसा अलैहि सलाम ने जो आवाज दी, मन अंसारी इल्लल्लाह, who will come and help me in the cause of Allah. The words are very important. He didn't say in my cause, in the cause of Allah. This is important. जब आए अल्लाह के लिए आए. हम भी इधर आए, when we collect to listen to the Quran, सिर्फ अल्लाह के लिए आए, मेरे लिए कभी मत आइएगा. ये नियतों को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है. It is only for Allah. ठीक है? And one thing to understand is ईसा अलैहि सलाम was alone ना, जब इन्होंने ये पुकार लगाई थी कि कौन आएगा मेरी मदद करने के लिए. बनी इसराइल तो सारे के सारे दुश्मन बने चले जा रहे थे. But sometimes you start alone. You are only one. लेकिन यू कांट सिट एंड कीप वेटिंग कि भाई ये भी मुस्लिम हो जाए, सब आ जाएं, दोस्त भी आ जाएं, खानदान भी आ जाएं, सपोर्ट सिस्टम बन जाए, पहले मेरे पास 100 लोग जमा हो जाए, फिर मैं काम शुरू करूंगी. नो,
काम शुरू करने अल्लाह हेल्पर साथ देता चला जाता है, कैरावान बना देता है, पूरी की पूरी जमात बना देता है. यू कांट सिट अराउंड बी वेटिंग फॉर एवरीबडी. एंड अ जमात वाज बीइंग फॉर्म्ड. अ जमात, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें एक जमात बना दे, नॉट अ मॉब. मॉब नहीं जमा करना. मॉब तो मैं बाहर स्पीकर लेके खड़ी हो जाऊं, ऐसे डंडे वाले मौलवी इंशाल्लाह जमा होंगे पूरे के पूरी, ये गलियां भर जाएंगी. नहीं जमा करनी, उनका कोई काम नहीं है, वायलेंस का कोई काम नहीं है. जमात के अंदर होती है डिसिप्लिन. ऑन टाइम क्यों आए? पहले नहीं आए, अल्लाह के लिए आए हैं. नॉट पर्सनैलिटी वर्शिप, नॉट पर्सनैलिटी कल्ट. कोई मेरी वाह वाह करने के लिए नहीं आए. मैं भी अल्लाह के लिए बैठी हूँ, आप भी अल्लाह के लिए बैठी हैं, ठीक है. एंड अ जमात इज ऑर्गेनाइज्ड एंड पंक्चुअल एंड ओबीडियंट. और हदीस का मफहूम आता है कि अल्लाह का हाथ होता है जमात के ऊपर. अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें जमात बना दे. मुझे बताएं, टायर जलाने वाले ये जमात है? आप सल्लम की कोई सुन्नत है? मुझे, यू सी इन मक्का when the Muslims were being persecuted for 13 years, मुसलमान जो स्लेव मुसलमान थे उनकी तो खालें खिंच रही थी. तो मुझे बताएं कि आप सल्लम उस वक्त नहीं कर सकते थे गुरिल्ला वॉरफेयर? आपको क्या लगता है मुसलमानों के अंदर जोश नहीं था? वो निकल के ऐसी की तैसी नहीं करते थे? सरदार मक्का के जाके घर नहीं जला सकते थे? जला सकते थे. हुक्म आया, नो, होल्ड बैक. पर्सनालिटी डेवलप की गई. तबलीग का काम जो है वो डंडों से नहीं होता है, बॉमर जैकेट से नहीं होता है. आप सल्लम ने कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया. आप सल्लम के सहाबा ने, ताबाइन ने, तबा ताबाइन ने कभी भी ये काम नहीं किया. हाँ, तलवार उठाई थी जंग के मैदान में जब किताल का हुक्म आया था, वो कोई और चीज है. ये हर गली के अंदर खड़े हो जाना टायर जलाने के लिए. अच्छा, टायर भी अपनी जला रहे हैं, नुकसान भी अपने मुल्क का ही कर रहे हैं. कार्टून बने फ्रांस के अंदर, बसें जल रही पाकिस्तान के अंदर. ये तो इल्म पहले इल्म डेवलप किया जाए, पर्सनालिटीज डेवलप की जाए. अच्छा, अब ये जो हवारीन थे इनको इंग्लिश में कहते हैं अपोस्टल्स. अपोस्टल्स, ठीक है. एंड अपोस्टल्स, इनका मतलब, हवारीन का मतलब होता है दे वर वाइट. वाइट कैसे थे? आइदर उसकी तफसीर ये आती है कि दे वर्कड नियर द सी ऑफ गलाली एंड दे यूज्ड टू बी धोबीज. ये वाइट कपड़ा धोते थे. तो उसकी तफसीर के अंदर आता है कि मूसा ये ईसा अलैहिस्सलाम went up to them and said, अच्छा तुम कपड़े धोते हो, you keep washing this cloth, you know how to make cloth clean, come let me teach you how to clean people's hearts. और ये आ गए, इनके साथ ज्वाइन कर लिया तबलीग के लिए. या ये होता है, या ये फिशरमैन थे या ये धोबी थे, ठीक है. अच्छा, अब हवारी जो है इनकी रिवायत के अंदर आता है. How many हवारीज did Isa अलैहिस्सलाम have? 12. Yes. And how many Sahaba did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have? 125,000 Sahaba as helpers to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1,25,000 Sahaba. In the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he got a lot of helpers for his mission, and who carried his mission forward. और अगर देखा जाए, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें भी हेल्पर्स में से बना देना, बिकॉज वी आर दी उम्मती ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वी आर सपोज टू टेक अप द मिशन एंड स्प्रेड द कुरान एंड द सुन्ना टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब. बट वी शुड स्टार्ट विद आवर ओन गली मोहल्ला. वी शुड स्टार्ट विद आवर ओन फ्रेंड सर्कल, ठीक है. एंड दे सेड, नाउ लुक एट दिस आयत. इन दिस आयत द हवारीन आर सेइंग वी आर मुस्लिम. We are the helpers of Allah. We are Muslim. Why? Because I told you the deen from Adam alayhi salam to Muhammad alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam is only deen Islam. और जो इस्लाम को फॉलो करता है वो मुस्लिम होता है. And then they called themselves either नसरानी बन गए, क्रिश्चियंस बन गए, जूस बन गए. ये उन्होंने अपने नाम खुद रखे, ठीक है. And look at these 12 people. You see, you can't be sitting. One thing you have to understand. तबलीग के लिए क्या जरूरी है? You can't be sitting at home carefree. If today the Muslim Ummah is on decline, it is because of us. Because we are sitting at home carefree. हम कहते हैं हाँ जो हो रहा है वो ठीक है, some दाढ़ी वाला मौलवी is going to come and fix the situation. It's not my job. But it is your job. But you are a Muslim. But you are an ummati. So you cannot be sitting at home. हम इसी वाले कमरों में carefree बैठे हैं और हम कहते हैं भाई कोई ना कोई तो आएगा ना, मुसलमान उम्मत को एक करेगा, एक दिन मुसलमान उम्मत को जगाएगा. वो कोई कौन होगा? वो मैं हूँ. अपनी ये उंगली जो यूं यूं ढूंढ रहे हैं ना, इस उंगली को यूं टर्न करें.
अपने ऊपर काम लेकर आए हम. Because you see, if for instance we're sitting here in class, somebody's mother, my mother, your mother, she's standing here and 4 people are beating her, kicking her in the stomach and beating her. क्या होगा हमारे साथ? हम सब खड़े हो जाएंगे कि भाई किसी की माँ है तो कैसे मार सकते हो. जाएंगे ना बचाने के लिए, हम दौड़ेंगे, हम भागेंगे. हमारे अंदर इतनी गैरत है कि we will try and go and save that mother. हमारी माँ से बढ़ के दीन इस्लाम है, and it is being kicked in the stomach and it is being trampled under the feet. हमारी माँ से बढ़ के है ना दीन हमारे लिए. How can we be complacent? How can we be comfortable? You see, what's happened is the shaitan has made us so busy in our own personal lives that we never get to go and save this mother of ours that is being trampled and downtrodden. इस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं. इस्लाम का तो तमाशा बना दिया. मुस्लिम नाम होना नाउज़ुबिल्लाह गाली बना दिया. ये हाल किया दीन का. कैसे हो सकता है कि हमारी गैरत ही नहीं जाग करी और किसी की नहीं जागी. कोई बात नहीं, हमारी जागनी चाहिए. एक एक करके भी आएंगे ना, समंदर बन जाएगा इंशाल्लाह. फिर क्या होगा? जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ है, फिर अल्लाह काम करवा देगा इंशाल्लाह. लेकिन नियत के अंदर कम से कम दिस अवेकनिंग नीड्स टू कम, where I personally can no longer be an apologetic part-time Muslim. मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि दीन इस्लाम का ये हाल हो और मैं मज़े से 15-18 घंटे सो रही हूँ और बाकी 12 घंटे में नेटफ्लिक्स देख रही हूँ. ये नहीं हो सकता. It's not becoming of a Muslim. And what did they say? They didn't say to Isa alayhi salam, we are a helper to you. Isa alayhi salam, when he called them, he said, who will come and help me in the cause of Allah? When they are replying, they said, we are helper to Allah. We are helpers to Allah. What happens? ये होती है the army of Allah. ठीक है? Why? Because इसके अंदर लीडर के ऊपर नबी तो ऐड से पाक होता है. ठीक है, मैं आज की बात कर रही हूँ. नबीज नेवर हैव फॉल्ट एंड दे डोंट हैव सिन. तो उनके साथ अगर आप अटैच हो जाए, बट इवन व्हेन दे आर अटैचिंग टू द नबी, दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स हेल्पर्स ऑफ अल्लाह. टुडे द प्रॉब्लम इज पीपल अटैच देमसेल्व्स टू अ लीडर, टू अ मौलवी, टू अ स्पीकर. ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज सम फॉल्ट ऑफ दैट मौलवी कम्स आउट एंड दैट मौलवी इज ह्यूमन. फिर वो दीन से डिसल्यूजन हो जाते हैं, फिर वो दीन का काम छोड़ देते हैं. तो पहले ही अल्लाह ने बता दिया, जब आना है अल्लाह के लिए आना, किसी बंदे के लिए मत आना. जब आना अल्लाह के लिए आना, then you will be secure. अल्लाह के लिए कर रहे हैं, even if the cause is not successful. ठीक है, कोई बात नहीं, you don't get disheartened. अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, हमें तो अजर मिल जाएगा, हमें तो जन्नत मिल जाएगी, no problem. ठीक है. Then the second thing is that ये जो the other thing that happens is that people get disillusioned when they find a personality problem. This is the problem with personality worship or cult form करना. कल्ट क्या होता है? एक इंसान के पीछे आता है, जब वो इंसान फेल हो जाता है, सारा मिशन डिसॉल्व हो जाता है. जब अल्लाह के लिए आएंगे, अल्लाह कुरान और सुन्नत कभी फेल नहीं होगी और आप सारी जिंदगी उस मिशन के साथ जुड़े रहेंगे. इसीलिए बार बार नियतों को करेक्ट करने की ज़रूरत है. हम भी जब कुरान क्लास आए, हम ये नियत कर आए कि अल्लाह हम तेरे लिए आ रहे हैं, अल्लाह वी आर बेगिंग यू फॉर हिदायत. अच्छा, फिर बनी इसराइल यूज्ड टू से टू मूसा अलैहि सलाम, मूसा यू गो एंड प्रे टू अल्लाह. ये बहुत ही ढीठ कौम थी ना, नाशुक्री कौम. दुनिया पे अल्लाह पाक ने इस कौम से बड़ी मोहब्बत की, बड़े पैगंबर भेजे, बड़ी नेमतें दी और ये नाशुक्री में बढ़ती चली गई. मूसा अलैहिस्सलाम को कहते थे, जाओ तुम जाके रब से हमारे लिए मांगो. मन और सलवा भी मांगना था, जाओ तुम मांगो. खुद दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते थे. ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, द हवारीन, हिज हेल्पर्स, वो खुद दुआ मांग रहे हैं. They're not telling ईसा अलैहिस्सलाम के जाओ तुम जाके मांग कर आओ. तो पता क्या चला कि ये शुक्रगुजार थे. They were true Muslims and they were making this dua. ठीक है. Then they said they believe in the book. They said to Isa alayhi salam, we believe in what you have brought and we follow you. Now write us as a witness. पता क्या चला? खाली belief से witness नहीं लिखे जाते. खाली belief, you are not written as a witness. How will you be written as a witness? When your action is showing that belief.
हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक जिंदगी के अंदर कुरान का अमल नहीं होगा तो हम फिटनेस थोड़ी लिखे जाएंगे। वो अमल जरूरी है, अमल करके दिखाएंगे तो पता चलेगा ना कि मुस्लिम है। खाली कुरान पढ़ पढ़ के चूम चूम के रख देंगे अलमारियों के ऊपर और जिंदगी के अंदर एक, एंड बिलीव यू मी, सम पीपल दे रीड कुरान फॉर 10, 15, 20 years, एक 0.01% चेंज नहीं आता उनकी जिंदगी के अंदर। इस चीज से डरने की बहुत जरूरत है। मेजॉरिटी से अरबी पढ़ती हैं नहीं, इवन द तफसीर, इवन दे लिसनिंग टू द ट्रांसलेशंस एंड दे डोंट चेंज। अल्लाह पाक से मांगे क्या, अभी रमजान है, अल्लाह पाक से मांगे अल्लाह हमारे दिल खोल दे, अल्लाह कुरान का नूर हमारे दिलों के अंदर भर दे, अल्लाह बदल देना ये दिल, अल्लाह ये जिंदगी हमारी बदल दे, कुरान के हिसाब से बदल दे, जो तू चाहता है वैसा हमें बना दे। बिकॉज द मोस्ट डेंजरस थिंग इज दैट यू कम टू द महफिल ऑफ दीन एंड यू लीव विदाउट चेंजिंग। ये मुनाफिक की सिफ्त होती है। मुनाफिक केम टू द महफिल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा भी कोई बदबख्त होता होगा, ऐसा भी कोई बदनसीब। They heard the words of the Quran spoken by the tongue of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most beautiful in the dunya, the most beautiful face, the most beautiful speech. और वहां से वो दिल काले लोके निकल गए उस महफिल से, और काले के काले दिल रख के मर गए, और मुनाफिक मर गए। This is why Allah says मुनाफिक is going to burn in the lower level of hell even than काफिर। काफिर को कम टॉर्चर मिलेगा, मुनाफिक को सबसे ज्यादा टॉर्चर मिलेगा जहन्नम के अंदर। Why? Because काफिर तो जबान से कहता है he is an enemy, मुनाफिक छुपा दुश्मन होता है। मुनाफिक जबान से कहता है I am a Muslim, और फिर पीछे से वार करता है। तो अल्लाह को तो पता है कि दिलों के अंदर क्या है। और सबसे ज्यादा मुझे तो जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, सबसे ज्यादा डर मुझे इस हदीस से लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक निशानी मुनाफिकों की ये भी होती थी कि वो उनसे इशा और फजर नहीं पढ़ी जाती थी, बहुत भारी गुजरती थी। और मैं इतना रोती थी बिकॉज फजर के साथ तो एवरीबडी स्ट्रगल्स। मैं कहती थी अल्लाह कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं बन गई कि मैं कुरान पढ़ भी रही हूँ और मैं तफसीर पढ़ भी रही हूँ और मुझसे फजर अगर नहीं पढ़ी जा रही, अल्लाह कहीं ये मुनाफिक की निशानी मेरे ऊपर तो नहीं अप्लाई। सबसे पहले कुरान आपको यही डराता है कि आप मोमिन बनना चाहते हो, अंदर से ये यर्निंग आती है, और फिर इंशाल्लाह चेंज इज वेरी इजी आफ्टर दैट। और फिर बनी इसराइल को कहा जा रहा है वो क्या कर रहे थे, मकर कर रहे थे, मकरू। दे स्टार्टेड कनिंग स्कीम्स। व्हाट वर देयर स्कीम्स? दे जॉइंड टुगेदर विद द रोमन्स, दे वर प्लानिंग द असैसिनेशन ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो अल्लाह पाक इस आयत के अंदर कह रहा है कि अल्लाह भी फिर चाल चलता है, तुम चाल चलो। अल्लाह से बेहतर दुनिया के ऊपर कोई, अल्लाह की चाल सब चालों पर भारी है। वो क्या कर रहे थे जब वो चाल चल रहे थे, जब वो मकर कर रहे थे, अपने आप को स्मार्ट एलेक्स समझ रहे थे ना। दे थॉट नोबडी इज स्मार्टर देन देम, दे थॉट वी नो कंप्लीट, वी नो व्हाट वी आर प्लानिंग, और हम इसको मार देंगे ईसा अलैहिस्सलाम को, और हम इसको असैसिन कर देंगे। एंड ईसा अलैहिस्सलाम के पास कितने लोग थे? एक ईसा अलैहिस्सलाम, 12 हवारी 12 apostles and 1 ईसा, 13 in total। बनी इसराइल के पास सामने वाली आर्मी में कितने लोग थे? hundreds and thousands थे बनी इसराइल की आर्मी, hundreds and thousands। लेकिन कभी वो कमजोर हो नहीं सकता अल्लाह जिसका दोस्त हो। यही चीज जो है ये आगे आयतों के अंदर, let's do a few maybe 2 more ayats to show the assassination जो ये प्लान कर रहे थे। Let's do ayat number 54 and 55. They planned and Allah planned. यही मैं आपको कह रही हूँ ना, जब ये मकर कर रहे थे, व मकरू व मकर अल्लाह, ये प्लान कर रहे थे और अल्लाह की प्लानिंग ऊपर से आई थी। They planned and Allah planned, and Allah is the best of planners. When Allah said, O Isa, I shall cause you to pass away, raise you up unto me, purify you from those who disbelieve, and make those who follow you above those who disbelieve you till the last day, then unto me shall you all return, and I shall judge between you concerning those things that you differed in. That concerning those things wherein you differed. अच्छा, अब ये आ गया part of ayat number 50, we're doing 54 and 55, ठीक है। 54 and 55 में क्या मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने चाल चली, अल्लाह ने चाल चली। Now they were making schemes to assassinate Isa alayhi salam, and usually when prophets bring a message to a nation,
First what happens is the nation denies. आप सल्लम के साथ भी ये कर रहे थे, पहले डिनाई करते रहे, फिर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप सल्लम को मजनून, नाउज़ुबिल्लाह, पागल बुलाया और साहर हो गया उनके ऊपर, सब चीज़ें इल्ज़ाम, झूठा, कज़्ज़ाब बुलाया। पहले वर्बल अब्यूज़ शुरू होती है, ठीक है, फिर प्रोपेगेंडा शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद when they constantly not listening and denying at the end, और इस वक्त तक सब्र से तबलीग करते रहते हैं रसूल। ईसा अलैहिस्सलाम भी तबलीग करते रहे, आप सल्लम भी तबलीग करते रहे। Then there comes a point when the qawm starts to make plans of assassinations of the Rasul, and जब जान के दुश्मन बन जाते हैं, usually at this point अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आ जाता है, because अल्लाह तो बता देता है रसूल को कि this is what they're planning, हुक्म आ जाता है हिजरत करने का। आप सल्लम के पास हुक्म हिजरत का कब आया? जब कुफारे मक्का जो है वो उन्होंने प्लान किया था आप सल्लम की असैसिनेशन को। एट दैट टाइम अल्लाह पाक ने कहा अब आप हिजरत करके मदीना चले जाएं। तब तक नहीं आया था, तब तक तबलीग का काम चल रहा था। वो दारुल नजवा के अंदर बैठे थे, उन्होंने असैसिनेशन प्लान की थी, एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट अल्लाह पाक का हुक्म आ गया, आप सल्लम वाज टोल्ड टू माइग्रेट। दारुल नजवा ये वो जगह थी जहाँ पे ये बैठ के शेरो शायरी करते थे, गज़लें सुनाते थे, नाच गाने करते थे। सारी प्लानिंग इनकी सरदार मक्का की वहाँ होती थी, मक्का के अंदर। अच्छा, मोस्टली प्रॉफिट्स को हुक्म, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हिजरत का हुक्म दे दिया गया था। ही वाज आल्सो माइग्रेटेड, ही सेड आई एम गोइंग टुवर्ड्स अल्लाह, माय अल्लाह इज गोइंग टू गिव मी समथिंग बेटर। तो मोस्टली प्रॉफिट्स लीव, जब कौम नहीं सुन रही होती तो अल्लाह पाक कहता है ठीक है, आप नॉट जब नहीं सुन रही होती, जब असैसिनेशन प्लान कर रही होती कि जब बिल्कुल दुश्मनी के ऊपर उतर आए हैं, अब उनको अल्लाह पाक हिजरत का हुक्म दे देता है। ईसा अलैहिस्सलाम की हिजरत वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज फ्रॉम द दुनिया टू द हेवंस। हिजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी की, मगर कहाँ से की? दुनिया से उठा लिया गया, उनको आसमानों में जन्नत में रख दिया गया। टुवर्ड्स द हेवंस ही हैज बीन रेज्ड। और ये आयत इसी के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के उर्दू में इसको कहते हैं रफ़ाए आसमानी, उनको उठा लिया गया था। ही वॉज रेज्ड टू द हेवंस। एंड अरबिक वर्ड जो आ रहा है इस आयत के अंदर, मुतवाफिका। सम पीपल हु डिनाई मिरेकल्स डिनाई दैट ईसा अलैहिस्सलाम वाज रेज्ड। वो कहते नहीं, ये तो खाली स्टेटस में रेज किया गया था ईसा अलैहिस्सलाम को, सिर्फ उनके दर्जात बुलंद किए गए थे, नहीं, उनको फिजिकली बुलंद किया गया था। द अरबिक लैंग्वेज इज स्टेटिंग इलाह, एंड इलाह इन अरबिक ग्रामर इज यूज्ड to show that he was physically raised. पूरा का पूरा body and soul of Isa alayhi salam was taken up by, subhanallah, by Allah. मैंने आपको कहा Isa alayhi salam's entire life was a miracle. From his birth till what appeared to the dunya as his death, it was not his death. He's raised physically and he is alive. He is kept alive with Allah completely. Allah said, I will take you completely, you will not die. Subhanallah. And usually what happens when people die, only the ruh goes to Allah, right? Isa alayhi salam, Allah took the ruh and the body. And one of the opinions of mutafika, ye band ho gaya. Okay, never mind, I'll take it from here. Mutafika is that it is in two stages. Two stages के अंदर क्या है? One, that Isa alayhi salam has been put to sleep. How is this body going to sustain in the heavens? Maybe he's been put to sleep and he's been raised up to the heavens by Allah. He's kept, yes he did. Yes he did. How come he's asleep? It could be that one of the opinions of the ulama is that he has been raised up to the heavens asleep, and he is being sustained in the skies. He's being kept alive in the skies by Allah Rabbul Izzat. अब ये देखें ना कि ये तो उस वक्त भी तो किया था जब हज़रत सल्लम को तो रेज कर दिया था। इवन सूरह कहफ के अंदर जो गार के अंदर द स्लीपर्स थे, 7 स्लीपर्स, वो तो रख दिए गए थे 300 साल के लिए, उनको जिंदा रख दिया गया था ना। तो एनीवेज, अब ये जो ही वाज रेज्ड अप, अब जितने इल्ज़ाम लगाए गए ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, दे वर प्लेस्ड ऑन ईसा अलैहिस्सलाम एंड बीबी मरियम आफ्टर ईसा अलैहिस्सलाम्स डेथ। फिर बनी इसराइल ने नाउज़ुबिल्लाह उनके ऊपर इलेजिटिमेट होने के इल्ज़ाम लगाए, मजिशियन होने के इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक
He was even called satanic. He said he has Satan's powers, nauzubillah. That is why they denied Isa alayhi salam. Allah said, I will cleanse you from every one of their, I will cleanse you from their ilzamat. ठीक है? And Allah is promising in this ayat, I will keep your followers dominant. बहुत बड़ा promise है. और अल-हक है ये promise. ये कुरान के अंदर अल्लाह ने दिखा दिया. अल्लाह promised ईसा अलैहि सलाम, whoever are your followers, I will keep them dominant over the ones who denied you. Who denied them? Bani Israel. Who followed them? Who followed Isa? The Christians. Acha, I will prove it to you now. This ayat till this date, up until the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But Bani Israel दुनिया के ऊपर हमेशा जलील रही है, हमेशा downtrodden रही है, and always on the dunya they have been persecuted. They have been either helped by the Muslims or they have been helped by the Christians. That's how they raised up. अगर आज ये बैंक चला रहे, दुनिया के फाइनेंशियल systems चला रहे, they have been helped by the Christians. Otherwise, Bani Israel themselves have been persecuted by who? Let's look at history. They have been persecuted by Nebuchadnezzar. इनको लाखों की तादाद में मारा गया है दुनिया के ऊपर. Nebuchadnezzar, जनरल टाइटस, हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर बंद कर करके इनकी नस्लें खत्म कर दी थी. तो अल्लाह ने कह दिया ईसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं मैं उनको इज्जत दूंगा, उनको मैं सक्सेसफुल रखूंगा, और जो तुम्हारे डिनायर्स हैं मैं इनको दुनिया के ऊपर भी जिल्लत दूंगा, और ये दुनिया के ऊपर आज दिन तक जलील हैं. ये इतने पावरफुल है. मुझे बताएं, आज दिन तक अपना मुल्क तो कंप्लीट कर नहीं सके इजराइल का स्टेट. इनके दिमाग में इजराइल का स्टेट, बाय द वे, वार्निंग साइन फॉर दज्जाल. हमें साथ साथ में ये पॉइंटर्स पता होने चाहिए. इजराइल का स्टेट, गो एंड गूगल द कंप्लीट स्टेट ऑफ इजराइल. आपको पता चलेगा ये इजराइल का स्टेट फलस्तीन को लेते हुए, पार्ट ऑफ सीरिया लेते हुए, पार्ट ऑफ ईरान लेते हुए मदीना तक लेके जाएंगे, तब इनका स्टेट कंप्लीट होगा. और ये कब कंप्लीट करेंगे? जब दज्जाल आएगा. ये इनका प्लान है एंड इट्स अवेलेबल ऑन गूगल. प्लीज गो एंड गूगल इट. द कंप्लीट मैप ऑफ इजराइल अगर आप गूगल करेंगे, दिस इज देयर प्लान. तो अल्लाह ने कह दिया तुम दुनिया के ऊपर जलील रहोगे, और जलील रहे ये आज दिन तक. इवन द मुस्लिम, यू नो, व्हेन मुस्लिम्स हैड खिलाफत, तो इनको पनाह मुसलमान बादशाह दिया करते थे. the heads of state of the Muslim used to give panah to them to save them from persecution. ठीक है. Then एक तो दुनिया के ऊपर इनका हशर, ठीक है, उसके बाद कब्र का हशर. Then on the day of कयामत, हैबत नाक इनका हाल होगा कयामत के दिन. क्यों? अल्लाह से, अल्लाह के रसूलों से दुश्मनी की इन्होंने. Then जहन्नम. And on the day of Qiyamah, I told you the worst is the Allah that they claim to love so much, they will not be able to see him on the day of Qiyamah. Why did they deny Allah and Allah's prophets? And also another, now who denies this taking up, Isa alayhi salam being taken up by Allah? The Qadiani deny this. They deny this miracle because they insist that Isa alayhi salam died, and therefore now the next Masih who has come down, they say, Nauzubillah, that Ghulam Ahmad Qadiani is the Masih. That's who they name him. ये कुरान की आयत से ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. और अल्लाह पाक ने जुल्म और नहूसत इनके ऊपर लिख दी. Why? Because they're not worthy of Allah's love. Now कुरान जो है वो दिक्र हकीम है. अच्छा, now we're I think running out of time. We will continue from ayat number 56. We've completed till 55. We'll continue from ayat number 56 inshallah tomorrow, and we'll make dua. Wal akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.